Hello. 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 Yes, Girls, ma'am. can you hear me? Yes. Okay. We have completed carbohydrate. Let's start with protein. Dietary protein perform all three functions of nutrient. It is needed for growth, maintenance, and repair of body tissue. It regulates key process within the body, and any excess protein is used as source of energy. Okay, the protein performs a work for, it helps in growth also, it helps in maintaining body like tissues and all, and repairs if some tissues are ruptured. कोई टिश्यू अगर रप्चर हो गया या वुंड हो गया या कट गया है तो उसको हीलिंग के लिए भी प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, then the term protein means to take first place was introduced by the Dutch chemist Malterd in 1838. Okay, he has defined protein as a nitrogen containing constituent of food and felt life was impossible without it. ठीक है, जो प्रोटीन का जो फर्स्ट स्टडी जिससे की गई थी वो डच केमिस्ट मल्टर्ड से की गई थी 1838 में. And he is make a conclusion that protein is as nitrogen constituent. उन्होंने ये बताया था प्रोटीन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग है, and without protein it is not impossible to maintain or growth and repair tissues. About 50% of protein is present in muscles, 20% in bone, 10% in skin, and the rest of is present in other parts of the body, because our body is made up of 100% of protein. तो प्रोटीन यहाँ 50% ये बताया प्रेजेंट इन मसल्स, 20% in bone, 10% in skin, and rest of is present in other parts of the body. Let's see the classification of protein. Depending on the chemical composition, protein are classified as given. That these are the protein characteristic and example. First is albumin, simple protein. Okay, soluble in water, dissolved in salt solution, dissolved in acid and paste, coagulated by vitamin A, and it is found in lactoalbumin, egg albumin, and serum albumin. Protein is highly present in lactoalbumin means milk में present होता है, egg albumin the egg yolk में जो albumin होता है वहाँ present होता है, and the serum albumin. Okay, then globulin. मैम एल्ब्यूमिन सिर्फ व्हाइट प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है क्या मैम? व्हाइट प्रोडक्ट में भी अवेलेबल होता है, एंड एग योक में भी एल्बुमिन होता है. तो बॉयल होने के बाद जो व्हाइटनेस होती है एग की, दैट इज एल्बुमिन. ओके, एंड सम पार्ट इन प्रेजेंट आल्सो इन एग योक. ओके, द मेजरली प्रेजेंट इन व्हाइट portion of the egg. Okay, clear? Yes ma'am. Then globulin soluble in salt solution, insoluble in water. मतलब salt के solution में soluble होता है, dissolve हो जाता है, and then insoluble in water. The sources is serum albumin, arginine and core-arginine of peanuts, and myosin. Third is histone, based protein soluble in most common solvent, fairly small molecules, and it occurs in nucleoprotein. That is, another is fibrous, that is collagen, resistance of digestive enzymes, insoluble convert to digestible protein like
Gelatin is generally, अगर हम लोग ने लिया directly तो it is impossible to soluble in, or it comes sometimes hinders the digestion. Okay, तो कभी भी gelatin को एक boiling कभी भी जेलेटिन को गर्म पानी में ही डाला जाता है, उसमें डालने के बाद उसका एक फॉर्म चेंज होता है। ओके, क्योंकि इट इज हार्ड एंड वाटर में डालने, हॉट वाटर में डालने के बाद जेलेटिन का टर्न हो जाता है। इट्स मेक्स इन जेलीज आल्सो, यूज्ड इन जेलीज आल्सो। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोप्रोलीन, lacks sulfur containing amino acid, and it occurs in skin, tendons and bones. ये जनरली जेलेटिन्स कहाँ होते हैं? अपने जो बोन्स होता है, अपने बोन्स के बीच में, जो बोन्स को जो मूव होने के लिए, जो जैसे आपके नी है, नी बोन को फोल्ड होने एंड अगेन जब आप स्टैंड होते हो तो नी जो बोन जो स्ट्रेट हो जाती है, तो वहां पे एक प्रेजेंट होता है जेल, दैट इज जेलेटिन। ओके, विच हेल्प्स इन बॉडी टू मूव। इट इज प्रेजेंट इन स्किन, टेंडेंस जो होते हैं, जो बारीक नसें होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एंड बोन्स में। देन elastin, partially resistant to digestive enzyme, contain latent hydroxyproline, and it occurs in arteries, tendons, elastic tissues which is stretchable. जब हमारे tissues जो stretchables वाले होते हैं वहां पे ये present होता है। then arteries, like heart में जो arteries होती है वहां पे, and tendons. Creatinine, highly insoluble and resistant to digestive enzyme, highly cystic contained, and occurs in skin, hair and nails. Okay girl, clear है table? कहाँ Yes, ये ma'am. occurs है and what is the characteristics of different proteins? Yes, ma'am. Then conjugative proteins and nucleoproteins, it is salts or basic proteins or polypeptide and nucleic acid, and it occurs in chromosomes and Then it's mucoprotein. Proteins or small polypeptide contain mucopolysaccharides, hexoamine less than 4%, and it occurs in glycode of serums, alpha globin, submycelase, and gastric mucocord. Then third is glycoprotein. Proteins or small polypeptide contain mucopolysaccharides, hexaamine less than 4%. It is less than 4% present in the protein, and it's occur in serum, alpha, beta and gamma globulin. Then another is lipoprotein. Lipoprotein का characteristic है complex of proteins and lipids having solubility properties of protein, and it occurs in cell and organelle, organelle membrane. Okay girls, then another is polylipid, complex of proteins and lipids having solubility properties of lipid, and it's myelin. Then chromoprotein, compound consists of protein prosynthesis group, and it occurs in peritines, humosidines, transferrines, hydroxylase. गर्ल्स ये रिलेटेड है ब्लड से, ठीक है? पेरिटिन हीमोग्लोबिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रोटीन वहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्रोटीन। Phosphoprotein, phosphoric acid join in either linkage to protein, and it occurs in carins of milk. Divert protein and coagulated protein, and its characteristic is denaturate protein produced by
acid and alkaline, and it occurs in coagulated egg white. Okay, this is present in egg white and is divert protein of coagulation. Then another is protein, earliest product of protein hydrolysis by enzyme, diluted in acid, etc., which are insoluble in water. This type of derivative proteins जो होते हैं that are dissolved in acid easily but insoluble in water, and it occurs in fibrin or fibrogen. Then metaproteins, two-stage products of protein hydrolysis obtained by transmuted with slightly stronger acid. These are dissolved in strong acids. Okay. Then two derived protein, progressive hydrolytic product of protein hydrolysis, and it occurs in proteases, peptones, polypeptides, and peptides. Then let's see the nutritional classification of protein. The nutritive value of protein is determined by the composition of essential amino acid. From the nutritional point of view, proteins are classified into two. The nutrition value जो है determines the composition of amino acids. Okay, the nutrition point of view से अगर उसको देखेंगे तो it characterized classified into three categories. First is complex protein. These proteins have all the essential amino acid in the required proportion by the human body to promote growth, good growth. Example, egg, albumin, milk, casein. ओके गर्ल्स, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है एग में, एल्ब्यूमिन में एंड मिल्क में, एंड इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर अमाइनो एसिड विच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ good growth of body. Then partially incomplete protein. These proteins are partially lacking one or more essential amino acid and hence can promote moderate growth. Example, wheat and rice proteins, limiting in lysine and threonine. This is partially lacking for one or more amino acid, and this is lessly present, and it is easily present in wheat and rice protein. That incomplete protein, these protein completely lack one or more essential amino acid, hence they do not promote growth at all. Example, gelatin lack in tryptophan, zinc lack in tryptophan and lysine. ठीक है, तो ये जो जनरली यूज होते हैं these are made use for just and agents like जो फर्मेंटेशंस वगैरह होते हैं या फिर हमें जेली बनाना है तो ये जेलेटिन्स वगैरह यूज होते हैं. दीज आर प्रोटीन्स बट इट इज लैक इन one or more amino acid, and they are not just for use for growth and development. These are used for only products and making diet. Higher quality protein produce as faster growth rate. Such growth rates measure equal to the actual. Factor important in protein. Pattern and abundance of essential amino acid, relatively amount of non-essential and essential amino acid digestible and present by tryptophan inhibitors all affects the quality of protein and in turn on affect the growth of rate. गर्ल्स, यहाँ पे ये बताया गया द फैक्टर ऑफ प्रोटीन, द पैटर्न ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल. यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पर प्रोटीन जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है. दिस आर द फैक्टर्स व्हिच इज इम्पोर्टेंट टू presence of tryptophan inhibits and affect the quality of protein. Then see the nutritional classification of amino acid. Essential amino acids are one that cannot be
synthesized by the body at the rate sufficient to meet the need for growth and maintenance. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं गर्ल्स, ये सिंथेसाइज होते हैं बॉडी से एंड इट इज सफिशिएंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द growth and development. Okay, the human body has certain limits powers of converting one amino acid into another. It is achieved in the liver by the process of transmination, whereby an amino group is shifted from one molecule across to another. Another, the influence of amino transfer, the coenzymes of which is pioxidal phosphate. गर्ल्स यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लिवर है वहां पे ट्रांसमिट होता है अमाइनो ग्रुप्स एंड एक के बाद शिफ्ट होने के बाद इट अक्रॉस टू अनदर अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर टू कोएंजाइम्स एंड यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी होती है विच कन्वर्टेड इट अमाइनो एसिड इनटू pioxalic phosphate. Inability to synthesize the skeleton of this carbon skeleton of these amino acids is the prohibit reason why they are used as dietary essential. Okay, these amino acid is tells that the synthesis of जो भी हमारे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं कार्बन स्केलेटन के लिए, वहां पे ये रीजन है कि why they are using for dietary essential. The table shows 9 out of 20 amino acids are classified as essential amino acid. गर्ल्स ये जो टेबल है आप देखो इसको, यहाँ पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दिए हैं, देन द कंसीडर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो एसेंशियल है विच is used for the growth and development, and non-essential amino acid is also responsible for it is less amino acids but it is also responsible for the growth. See, essential amino acid का कॉलम देखो, हिस्टीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन, मिथेनिन, पैराफिल अमाइन, फिथायरोमिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन. And conditional amino acids है arginine, cysteine, glycine, proline, triosine. And non-essential amino acid में आते हैं alanine, asparagine, aspartic acid, glutamic acid, glutamine and serine. Clear है girls? ये टेबल? हेलो गर्ल्स, क्लियर है table? Yes, ma'am. Essential and non-essential amino acid. Yes, ma'am. Then see non-essential amino acid. These are one that the body can make inadequate amount of nitrogen is available in the diet. Non-essential amino acid का भी मैंने बताया कि it is lessly responsible for growth and development, but the body can make adequate amount of nitrogen, which with बॉडी जो है इस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करने के बाद जो डाइट है वो हमारे अमाइनो एसिड में एसेंशियल अमाइनो एसिड जो रिस्पॉन्सिबल है डाइट में वो एसेंशियल अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में. दे आर नॉन एसेंशियल ओनली इन सेंस दैट दे आर नॉट एसेंशियल कंपाउंड ऑफ द डाइट. यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को उन्होंने बोला है दे आर द सेंस दैट दे डू नॉट essential compound to the diet. Then conditional essential amino acids, these are needed in the diet unless abundant amount of their procedures are available for their synthesis. The conditional amino acids जो synthesize होते हैं they are abundant to the procedures. The newborn may not have enzymes in adequate amount to synthesize non-essential amino acids, or in intestinal metabolism, difunctions arginine may not be synthesized. The newborn जो बताया यहाँ पर जो enzymes होते हैं वो adequate amount
होते हैं सिंथेसाइज करने में, एंड दे आर इंडस्ट्रियली मेटाबॉलिज्म function which may not be synthesized. Hence, this become conditional amino acid. Amino nitrogen is not freely interchange between all amino acid. The amino acid जो है nitrogen में जो convert होते हैं, the mostly amino acids are not interchange. The procedures of additional amino acids are given in the table. सीगल्स यहाँ पे अमाइनो एसिड का एक छोटा सा टेबल बताया है जो कि कौन से जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड से वो कन्वर्ट होते हैं. यहाँ पे दिया है सिस्टीन, वो मिथेनिन, सीरीन एंड ट्रिप्टोफैन दैट इज फिलालिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट्स एंड एस्पार्टेट. देन प्रोलीन जो है वो कन्वर्ट प्रोसिक्योर होता है ग्लूटामेट एंड ग्लिसरीन इज serine and co-serines. Then functions of protein, growth and maintenance. Protein are the chief constituent of muscle organism and endocrine gland. They are the major and indispensable constituent of skin, hair, nail, bone, and teeth, blood, serum, एक्सेट्रा. द फंक्शंस क्या है यहाँ प्रोटीन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. अगेन दे आर प्रेजेंट इन मसल्स, जैसे यहाँ पे 50% मसल्स में था, 20% बोन्स एंड ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द मेजर्स आर प्रेजेंट इन स्किन, हेयर, nail, bone, teeth, blood and serum. The another function in short, every living cells of the body contain protein and is required for growth and maintenance of every cell in our body. हमारे जो बॉडी पार्ट है 100% प्रोटीन से बना है and which is required for the growth and development and every cell of the body. The second function is regulation of body processes. Protein are required for highly specialized function in our body. These proteins are as follows. The highly responsible है हमारे protein function करने के लिए, तो उसके properties देखिए. Immune protein, antibodies necessary for immunity. Reactions are protein in nature. Resistant to disease is an immunological response. मतलब यहाँ पे प्रोटीन को जो बताया, इम्यून प्रोटीन को बताया, हमारे एंटीबॉडीज होती है वहां पर जो कि हमें रेजिस्टेंस पावर्स देती है बॉडी के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे बॉडी को. देन एंटीबॉडीज होती है वहां पे. फिर रेजिस्टेंट टू डिजीज इज एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. देन हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स सच एज गर्ल्स वहां पे स्पेलिंग देखिए, करेक्ट कीजिएगा उसको. ADRENOCORTIC एंड्रोक्रोटिक tryptoid hormone and insulin are the protein in nature. Enzyme, all enzymes are protein in nature and are required at every step of digestion, absorption and metabolism. Again, protein is responsible जो कि digestion, absorption and metabolism के लिए help करता है every step of our life. The nucleoprotein, these gone the synthesis of all body protein. Nucleoprotein is also responsible for all the proteins to synthesize in our body. Then controlite protein, actin and myosin are responsible for action of muscles. Muscles में जो भी एक्शन होते हैं, जैसे कट हो गया तो वो उसकी हीलिंग के लिए, हमें बर्न फील हुआ तो उसकी हीलिंग के लिए जो भी responsible है, that is protein. That blood protein HB
hemoglobin. The most familiar constituent of blood is a protein which carries oxygen. Blood जो है that is Hb and protein which carries oxygen all over the body. Then other protein found in bloods are lipoprotein, transferrin, retinol, binding protein, serum, albumins, and immunoglobulins. गर्ल्स यहाँ पे ये ब्लड की बात आ रही है तो वो कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रोटीन एक तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए, देन ब्लड जो है वो कैरीज करता है ऑक्सीजन to all over the bodies, then it founds in lipoprotein, transferrin, and then binding के लिए प्रोटीन यूज होता है, then serum में albumin and mucoglobin. Then serum albumin is also responsible for regulating osmotic pressure and maintaining the fluid balance in the body. Osmotic pressure जो है गर्ल्स यहाँ पे ये बताया रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेंटेनिंग दी फ्लूइड बैलेंस. बॉडी का जो बैलेंस है, अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो समटाइम्स इट सीम्स और इट लीड्स टू प्रॉब्लम टू द बॉडी, and it also osmotic and maintaining the fluid balance. नेचुरल ओडेमा मतलब अगर फ्लूइड की कमी हो रही है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर फ्लूइड बॉडी में ज्यादा हुआ तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टिश्यू से ज्यादा होता है बॉडी के अंदर में, और कहीं ना कहीं टिश्यू रप्चर होते हैं, बॉडी में टिश्यूज एकदम स्वेल होना शुरू करेंगे जिससे ओडेमा आएगा. ओडेमा यहाँ पर ओडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग. स्वेलिंग कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फ्लूइड, कई किडनी पेशेंट्स का ऐसा होता है कि फिल्ट्रेशन नहीं होता है. फिल्ट्रेशन नहीं होता है तो बॉडी का जो वाटर है वो टिश्यूज में जाना शुरू हो जाता है. देन टिश्यूज उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पे टिश्यूज एक लेवल तक एब्जॉर्ब करेंगे. एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्वेल होना शुरू करेंगे जिसे हम एडेमा बोलते हैं. तो आपने किडनी पेशेंट्स को देखा होगा कि उनके हाथ पैर पतले होते हैं बट द स्टमक इज लार्ज, मतलब एक फूलने लगता है. देखा होगा ना गर्ल्स आपने किडनी पेशेंट्स ऐसे जो सीवियर होते हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन क्लियर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है बॉडी उनके से. किडनी में प्रॉब्लम स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए स्टमक उनका लार्ज होने लगता, मतलब लार्ज होने स्वेलिंग के लगता है. कारण फिर बड़ा लगता है मैम. ओके, क्लियर टू ऑल? यस मैम. Okay. Level of blood protein falls and fluid accumulate in the tissue. Same thing. Nutritional edema always start from the feet and extended upward to the अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो न्यूट्रिशनल अडेमा जो होता है, न्यूट्रिशनल के डेफिशिएंसी से जो अडेमा होता है वो पहले पैरों पे देखा जाता है, देन इट गोज टुवर्ड अपवर्ड्स डायरेक्शन, फिर वो टमी में या फिर थाइज में या फिर हमारे टिश्यूज में देखा जाता है. देन specific function. Some amino acids have specific and specialized functions in the body. Example, tryptophan is procure of niacin and serotonin, blood vessels contractors. Methionine supplies label methyl group from synthesized proline, which prevent accumulation of fat in the liver. Glycine is required for the formation of propylene of HB and is important constituent of nucleotides. Every जो प्रोटीन बताया गया गर्ल्स, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का जो फंक्शन है वो प्रोसिक्योर करता है नियासिन को. देन इज सिट्रिन्स जो है जो ब्लड वेसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल, ये हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपेल्स जो होता है वहां पे रिस्पॉन्सिबल बताया है. देन सिंथेसाइजिंग प्रोलिन विच प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर. यहाँ पे जो कैरी होता है फिल्ट्रेशन का जो बताया है वहां पर ये प्रोटीन काम होता है मिथियानिन. देन रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोलीन्स इन एचबी. देन एचबी में जो बताया प्रोटीन का रोल, जो रेडनेस जो दिखता है, क्रिएटिनिन जो बताया है वो अगर उसका लेवल कम हुआ है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. ओके. देन जिंक भी एक रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो. Then supply of energy. Protein is the last source that the body taps
taps for energy. Protein like carbs yield approximately 4 kilocalories. However, the process of obtaining energy from the protein is not adversible since determination of amino acid plays uh, tremendous load on the kidney. यहाँ पे अगेन वही बात बताई है कि जो प्रोटीन है उससे हमें एनर्जी सप्लाई होती है. Then it is energy giving also. Then the process of obtaining energy from the प्रोटीन, द प्रोटीन्स जो है वो एक बार एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज नॉट अगेन कन्वर्ट टू प्रोटीन. ओके, एक बार प्रोटीन कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, एनर्जी गिविंग में, देन एनर्जी गिविंग इज नॉट अगेन कन्वर्ट टू प्रोटीन एंड समटाइम्स इट क्रिएट द लोड. क्योंकि अगर प्रोटीन है, कई अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसे होते हैं गर्ल्स की वो एक बार अमाइनो एसिड से कन्वर्ट होकर दूसरे अमाइनो एसिड अदर फॉर्मेशन लेते हैं. देन अब वो प्रॉपर्टी परफॉर्म करने के बाद वो उनका एक तो ब्रेकडाउन भी होता है, उसपे सिंथेसाइज भी होता है एंड दे कैन सिंथेसाइज ब्रेकडाउन होके वो उनका एंड हो जाता है. बट सम प्रोटीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रोटीन एक बार एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो एडवर्सिबल नहीं होता है. दैट्स वाई, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जब बॉडी से फ्लूइड ही नहीं निकल रहा है, तो इट समटाइम्स क्रिएट्स ऑन किडनी. ओके, देन tremendously load on kidney besides expending on the constituent nutrient by the cheaper source of the carb. Utilization of protein for energy is the waste which weakens the body in all aspects, retards growth and reduce weight. फिर यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है, एडवर्सिबल ही नहीं है, तो इट लीड्स, और ये प्रोलॉन्ग के लिए है, तो ये जो बाकी जो प्रोटीन्स जो एनर्जी मिल रही है वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, जहाँ पे ग्रोथ रिटार्डमेंट हो जाती है, देन वो वेट रिड्यूस भी होता है. इट सीम्स इन ओल्ड एज ऑल्सो गर्ल्स. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. प्रोटीन डाइजेस्ट बीइंग इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. ठीक है, जो डाइजेशन में जो हमारे जो भी हमने खाया उसके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम एक्टिविटी होती है फूड के ऊपर पे, दैट इज पेप्सिन. पेप्सिन इज एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ द स्टमक. When pepsin acts on the protein molecules is break the bonds that holds the protein molecules together called peptides bond. जो भी एक्शन हुआ वहां पे, तो वो पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है पेप्टाइड्स बॉन्ड्स में, मतलब वो इजिली ब्रेक करते हैं एंड इट कन्वर्टेड टू एनर्जी. व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन, get changed from amino acids linkage together called polypeptide. Then वो convert होने के बाद वो polypeptide change amino acids बनती हैं and वो transfer होती है हमारे body के अंदर through energy. Polypeptide is many an amino acids unit joined together. These polypeptides then move into small intestines where digestion is completely by additional enzyme. Then ये polypeptide चेन बनने के बाद ये polypeptides moves होती है हमारे small intestine के तरफ, where digestion is completed. Digestion वहां पे जब चला गया polypeptide की चेन बनकर, then हमारा digestion complete हो जाता है and then वो large intestine से excrete हो जाता है. In the small intestines, pancreatic enzymes called trypsin, cytotrypsin and peptidase break down the polypeptides. यहाँ पे enzymes है, जहाँ पे ASE ऐड होता है गर्ल्स, वहाँ पे enzyme activities होती है and it break down to polypeptides. These enzymes enters the duodenum via pancreatic ducts. ये फिर एंजाइम्स वहां पे एंटर होते हैं डिओडेनम में, जहाँ की एक्सक्रीशंस आउट होता है. These pancreatic enzymes are helped by the brush border enzymes. इन्हें हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं. The peptide bonds hold the
polypeptides together, continuing to the hydrolyzed or broken down and result in a smaller unit called peptide. Peptides are simply defined as two or more amino acid linkage together. Enzymes continue to break down polypeptides and peptides into amino acids. गर्ल्स यहाँ पे एक्शन बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कैसे एक्शन होता है हमारी बॉडी के बाय एब्जॉर्प्शन से एक्सक्रीशन तक. Because amino acids are very small, they are able to be absorbed through the small intestine lining and into the blood stream. Dietary protein, यहाँ पे एक्शन देखिएगा, डाइटरी प्रोटीन वहाँ पे पेप्सिन एक्शन हुआ, एंजाइम एक्टिविटी हुई, देन इट कन्वर्ट्स टू पॉलीपेप्टाइड्स, देन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स से वो ट्रिप्टोफैन एंजाइम एक्टिविटी हुआ, देन इट कन्वर्ट्स टू पॉलीपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड, देन पॉलीपेप्टाइड से फिर एंजाइम एक्टिविटी हुई कार्बो ऑक्सीपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स, उसके बाद वो अमाइनो एसिड में हुआ, फिर डाइपेप्टाइड्स, फिर एंजाइम एक्टिविटी हुई उसके ऊपर में डाइपेप्टाइड पेप्टाइडेज से फिर वो अमाइनो एसिड में हुआ, देन ट्राइपेप्टाइड, फिर एंजाइम एक्टिविटी होने से फिर वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ. तो दीज आर दी प्रोसेस. Then symptoms of protein deficiency. The deficiency symptoms include weight loss. This is the major factor. Then anemia. This is also a major factor which seems in mostly nowadays. Then reduction resistance to an infection, impair healing of wound, hepatic insufficient nutritional edema, easily fatigue and muscles illness. These are the symptoms which seems in protein deficiency. Essentially, in the growing years, children fail to grow properly. This is wasting of tissues and they suffer from disorder. They are suffer from diarrhea and edema, which is characterized by a swollen abdomen. यहाँ पे गर्ल्स ये बताया गया है कि प्रोटीन जो आज जो लैकिंग हो रहा है विच इज जनरली सीम्स इन द चिल्ड्रंस वेयर द वेस्टिंग ऑफ टिश्यूज, मतलब टिश्यूज को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विच इज कैरेक्टराइज बाय द विच इज सफर फ्रॉम. वहां पर क्या हो रहा है कि उनको जनरली थोड़ा सा भी कुछ खाया पच नहीं रहा है, डायरिया हो जा रहा है, बार बार उसको मोशंस पास हो रहे हैं. ये भी एक बैड साइन ऑफ प्रोटीन का है. प्रोटीन डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं हो रही है उसको. Then, however, a particular type of complex protein due to protein malnutrition is seen especially in Central America. It is high mortality deficiency disease known as kwashiorkor, means red boy. गर्ल्स यहाँ पे क्वाशियोर्कर जो पेशेंट्स है जिनका जो हाथ पैर पतले हो जाते हैं, टमी बड़ा हो जाता है, समटाइम्स इट सीम्स सेज टू बी रेड बॉय. इनको इसलिए ऐसा बोला जाता है कि वो एक मतलब उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. वहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी देखी जाती है, हाईली मोर्टेबिलिटी इनमें होती है. द नेम कम्स फ्रॉम द ऑड रेडिश orange color of the hair as well as from a skin rash characteristic of the nucleus irritabilities, inabilities to digest and fatty degenerated of the liver. गर्ल्स यहाँ पर एक और प्रोटीन डेफिशिएंसी नाउअडेज देखा जाता है. ये जो तो क्वाशियोर्कर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनका एक तो टमी बड़ा हो जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, देन उनका हेयर कलर भी चेंज हो जाता है, एक रेडनेस दिखाई देती है उनमें. एंड जब ये किसी एज पर्टिकुलर एज में देखा जाता है तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी कई बार लीड करती है, पैचेस आते हैं, एक ड्राइनेस आता है स्किन में, ओके, एंड रेड पैचेस देखे जाते हैं जिसमें उनको इतनी ईचिंग होती है, जलन होती है, बहुत जलन होती है, मतलब उनको इनर जो उनके प्रोटीन जो टिश्यूज है वो रप्चर्ड होते हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर पैचेस दिखाई देते हैं बॉडी के ऊपर में, या मोस्टली इट सीम्स ऑन चेस्ट, टमी, थाइज, देन यहाँ पे उसके काफ्स में देखे जाते हैं. ठीक है, ये एक रेडनेस होती है.
वो जो पेशेंट जो होता है वो ऑल द टाइम कंप्लेनिंग करता है कि मुझे बस इरिटेशन हो रहा है, वो उनको ईचिंग नहीं होती है बट उनको जलन होती है उस टाइप की। Then some animals proteins found also supplies minerals and beta vitamins. Kwashiorkor is probably a protein deficiency completed with deficiency of certain minerals and vitamins. Dry skim milk is one of the most effective food for treatment and prevention of such proteins malnutrition in children. ठीक है, यहाँ पे ड्राई मिल्क स्किम मिल्क जो है जिसमें फैट नहीं होता है वो एक द गुड सोर्स ऑफ क्रिएटिंग दी चिल्ड्रंस मालन्यूट्रिशन वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको हाईली डायरेक्टली प्रोटीन से हैवी क्रिएट ना करने के लिए उनको ड्राई स्किम मिल्क प्रोटीन भी दिया जाता है, ओके, जिसमें फैट नहीं होता है। अगर उन्हें वैसा फैट कंटेनिंग मिल्क उनको देंगे तो कहीं ना कहीं उनके वो किडनी पे या लिवर फंक्शन पे इफेक्ट करेगा। गर्ल्स क्लियर है ये पॉइंट कि उनको Yes, स्किम ma'am. में दिया जाता है, ओके। देन प्रोटीन contraction using local available foods are prepared and feed to the susceptible young children. The diet may be supplement with the peanuts and soybeans flavors, other legumes, dry yeast or fish meal. फिर अनदर सप्लीमेंट्स उनके ये होते हैं कि उनको पीनट्स खाने बोलते हैं, जैगरीज भी खाने बोलते हैं, सोयाबीन फ्लेवर्स के उनको मिल्क भी दिया जाता है। एक मिल्क आता है जिसमें सोया मिल्क उसको बताया जाता है जिसमें प्रोटीन का जो है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। एंड जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसके लिए भी सोया मिल्क इज बेस्ट सोर्स। देन लेग्यूम्स है, ड्राई ईस्ट है एंड फिश भी दिया जाता है। ऑल दिस कैन बी प्रोवाइड एन एडिक्वेट मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। Sources of protein देखो, animal source are completely protein such as meat, fish, egg and poultry. They are good protein food in both quantity and quality. ये जो animal sources है they are highly protein foods which seems in fish, eggs and poultry, and they are both quality and quantity and quality wise. Milk is valuable source of protein because although it does not contain a large quantity of protein, the quality is excellent. ये large amount में protein नहीं होता है, but जो भी protein उसमें present होता है, they are excellent source of protein. Gelatin is derived from protein is an exception since it contains three limitation amino acid and hence it is a poor source. उसको इसलिए बोला गया है गर्ल्स कि इसको एक तो हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, देन अगर इसको डायरेक्टली भी लिया तो ये सिंथेसाइज नहीं होगा बॉडी में, इसलिए इसको पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन बोला गया है। एंड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन plant protein are legumes, pulses, nuts and oil seeds. But their quality is poor than that of flesh food listed. However, completing two plant source of combining an animal and a vegetable source is one meal increases the nutritional value of meal tremendously. बस यहाँ पे दोनों जो प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन को बताया है कि दे आर द कम्प्लीटली सोर्स विच इज हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है उसको ट्रिमेंडसली है उसकी। ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द पुअर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। वेजिटेबल्स जो है वो और फ्रूट्स जो है उसको पुअर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी बताया जाता है। गर्ल्स यहाँ तक प्रोटीन का पार्ट हो गया है, क्लियर है सभी को? Yes, कोई ma'am. डाउट है? Oh, ma'am. वी हैव कंप्लीटेड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ठीक है? Yes, ma'am. देन shall we start fats? Fats are one of the three main micronutrients along with the carbohydrate and protein. इसके तीन मेजर न्यूट्रिएंट हैं along with the carbohydrate and protein.
Fat molecules consists of primary carbon and hydrogen atom and are hydrophobic and soluble in organic solvent and insoluble in water. जो फैट है वो soluble है in organic solvent में, but it is not soluble in water. That's why fat floats on water. Example includes cholesterol, phospholipids and triglycerides. यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखो गर्ल्स. फैट जो है soluble फैट्स जो है तीन इसमें बताया है. soluble फैट, ट्रांस फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट. तो soluble फैट्स में है वेजिटेबल फैट, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल. देन एनिमल फैट में है फैटी मीट, क्रीम, चीज, बटर, होल मिल्क एंड घी. Then trans fat में है cookies, fried items. Then unsaturated is again subdivided into two, polyunsaturated and monounsaturated. So polyunsaturated में आएगा corn oil, sunflower oil and seeds. And monounsaturated में आया olive oil, peanut oil, sesame oil, avocados and nuts. क्लियर है गर्ल्स यहाँ पे? यस मैम. मैं आपको आगे के नोट्स फॉरवर्ड कर दी हूँ गर्ल्स. 1 मिनट. ओके. गर्ल्स किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो प्रोटीन एंड फैट का. आई एम गिविंग यू द फर्दर नोट्स टू यू. नो मैम, नो डाउट. ओके. आरती, यस मैम. किसी को डाउट था ना गर्ल्स वो एग्जाम फॉर्म को लेके, तो आप एक बार पर्सनली कॉलेज में जाके. हेलो. हाँ हाँ आरती बोलो. हाँ मैम, आया है वो ग्रुप में, तो मैं आज पे कर दूंगी. वो 7 तारीख तक का लास्ट डेट दिए हैं अब. हाँ हाँ ओके ओके ओके. तो वो फीस के लिए था शायद, वो एग्जाम के लिए फॉर्म आपको नहीं दिया जाता है, वो फॉर्म कॉलेज ही भरता है. ठीक है. ओके मैम. तो हाँ. उसके बाद लिंक मिल गया आपको. यस मैम. ओके. हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे गर्ल्स, जो भी आपके एग्जाम की डेट्स एंड एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो आपको मैसेज आ जाएगी. ओके मैम. यस मैम. मैम एग्जाम कब रहेगी? आपकी एग्जाम एंडिंग ऑफ जुलाई और मे बी इन अगस्त को. ओके. थैंक यू मैम. ओके गर्ल्स, जैसे भी ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. एंड जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा फिर मैं वो भी बता दूंगी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए आएंगे. ओके. जो टेबल आपको जो बताया गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का, तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो टेबल एंड प्रोटीन का टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से रीड आउट करना, उससे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. देन आपका जो 5 फूड ग्रुप्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके. जो मैंने आपको कल पढ़ाया था. यस मैम. देन ऑप्टिमम एंड माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन का है, उस पे से भी क्वेश्चंस आएंगे आपको. ओके गर्ल्स, वो एक इम्पोर्टेंट आप नोट कर लीजिए. गर्ल्स एक बार इम्पोर्टेंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए. बस एक शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ एमसीक्यूज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर मॉड्यूल ना,
so that's why I'm telling to you. एक मिनट मैम, हाँ मैं जा हाँ रही हाँ हूँ। मैं रुकिए रुकिए। यस मैम। हेलो। हाँ हाँ आप पहले एमसीक्यूज के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। हाँ न्यूट्रिशन पे, देन न्यूट्रिएंट्स पे, एक मिनट। न्यूट्रिशन 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 न्यूट्रिएंट्स, देन आरडीए, न्यूट्रिएंट यस NUTRIENTS, NUTRIENTS ENTS, न्यूट्रिएंट। ओके हाँ मैम। okay, then malnutrition, undernutrition, और मैम माल न्यूट्रिशन के बाद undernutrition, अंडर। yes, overnutrition and optimum nutrition, overnutrition and optimum nutrition. मैम लास्ट वाला क्या है? ऑप्टिमम। Optimum, OPTIMUM, यस मैम। OPTIMUM. यस Okay, मैम। then 5 food groups जो दिए हैं, 5 food groups में उसमें इसके ऊपर में एक क्वेश्चन आएगा आपको। क्या है 5 मैम? food groups, व्हाट? 5 food groups, 5 फूड ग्रुप। yes. फूड ग्रुप्स। Then उसके बाद क्या है मैम? 5 effect of बाबू मैंने कल एक्सप्लेन किया ना 5 फूड ग्रुप, व्हाट आर द 5 फूड ग्रुप, सीरियल्स एंड पल्सेस जो है, फिर लेग्यूम्स एंड ऑल है, ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स है। यस मैम। हाँ। उसके बाद जो रिलेशनशिप है उसमें देखना फैक्टर अफेक्टिंग फूड कंजम्पशन, वो आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग फूड कंजम्पशन, अफेक्टिंग फूड कंजम्पशन। कंजम्पशन CONS, बाबू कंजम्पशन लेना, ओके कंजम्पशन। ओके CONSMU SUMPTION, consumption, okay. Hello, Aarti, please mute your mic. Then good sources of food, good sources of food, then again next question आएगा आपको फूड एक्सेप्टेंस पे, फूड एक्सेप्टेंस, then classification of carbohydrate, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो टेबल आपको दिया है उसको रेफर करना आप अच्छे से, कैसे क्लासिफिकेशन होता है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ओके गर्ल्स, क्लियर है? यस मैम। ओके, गर्ल्स मैं आपको फैट्स एंड वाटर के नोट्स दे रही हूँ, वो अपलोड नहीं हो रहा है एक्चुअली, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ओके गर्ल्स। किसी को और कुछ पूछना है? गर्ल्स जो आज जो चीजें आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का बताई है वो आपके असाइनमेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है,
वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक का जो कॉलम दिया है उसको रीड आउट करो, वो कोरिलेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कहाँ पे कौन सी एंजाइम एक्टिविटी हो रही है और प्रोटीन पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, और वो कोरिलेट करो वहां पे। ठीक है, देखो मैंने बताया है कि कुछ एंजाइम्स एनर्जी गिविंग है और एडवर्सिबल है, बट प्रोटीन में कुछ एंजाइम्स एनर्जी गिविंग है बट दे आर नॉट एडवर्सिबल। देखा यहाँ पे रिलेशनशिप जैसा इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी गिविंग है एंड दे आर एडवर्सिबल, बट प्रोटीन में नहीं है। तो फैट में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही होगा, दे आर एनर्जी गिविंग बट दे आर नॉट एडवर्सिबल। सेम चीज कार्बोहाइड्रेट के साथ जब उसको आप कोरिलेट करोगे तो वहां पे एनर्जी गिविंग होगा और फैट में नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये दोनों टेबल, दोनों तीनों जो टेबल्स आपको आएंगे वो आप उसको रेफर करना, तो असाइनमेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, यस मैम। ओके गर्ल्स, बाकी मैं आपको वो रफली वाला टेबल भी और जो आगे के नोट्स है मैं दोनों आपको भेज रही हूँ। ओके यस मैम। ओके गर्ल्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you.